Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter we were studying and discussing, The Enemy, written by Pearl S. Buck. In this chapter, so far, we have covered a fair amount of the story, and we are in this part of the story where Dr. Sadao was operating the American prisoner of war to save his life. Dr. Sadao wanted help from his wife Hannah. He asked him to be ready to provide the anesthetic if needed. If the wounded man began to move, then Hannah have to give him the anesthetic. At first, Hannah was very nervous as he has never seen an operation going on. So, in the middle of the operation, Hannah also choked and she ran out with his hands from on her mouth, and he go outside in the garden and she was retching. That means she was vomiting there. Sadao was feeling very pity for Hannah because he was involving her in the process which she has never been experienced. Sadao was looking for the bullet which was still under the backside of that American prisoner of war. After vomiting for some time, Hannah returned back with confidence and she asked Sadao, where is the anesthetic? Sadao told her with his gesture that there is a bottle and cotton over there and you have to use them if there is a need. Hannah was very confident. She made herself very confident to help her husband. She was obedient and she does everything which Dr. Sadao commands her to do. When Dr. Sadao was operating, after a while, his instruments felt a hard thing inside the muscles of that American prisoner. That means the tip of the instrument struck with something hard, and Sadao knew that it was the bullet. Sadao now probed with his hands and he wanted to pull out the bullet, not using the instrument but using his fingers. In that process, Sadao remembered about
the American professor of anatomy who always told his students during the course of medicine and surgery, the professor of anatomy always told two very important things to his disciples. First thing that the professor of anatomy had said again and again in the classes is this: ignorance of the human body is the surgeon's cardinal sin. सिन का मतलब होता है पाप और कार्डिनल सिन का मतलब होता है घोर पाप। और एनाटॉमी के प्रोफेसर का कहना था सभी मेडिसिन और सर्जरी सीखने वाले स्टूडेंट्स से कि अगर आप ह्यूमन बॉडी के किसी पार्ट को इग्नोर करते हैं सर्जरी के दौरान, तो वो इग्नोरेंस जो है वो एक डॉक्टर के लिए घोर पाप के समान है। इट इज लाइक अ कार्डिनल सिन फॉर अ डॉक्टर। और इसके साथ वो और भी एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस हमेशा रिपीट करते थे अपने क्लासेस में। द प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी इन अमेरिका, एक और सेंटेंस वो रिपीट करते थे, ये सेंटेंस है: टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस दैन दैट इज मर्डर। उसके प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ये भी बोलते थे कि अगर आप किसी ह्यूमन बॉडी को ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब सर्जरी कर रहे हैं, तो आपको उस ह्यूमन बॉडी का एक एक पार्ट्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए एज अ डॉक्टर। और अगर आप बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के, इंफॉर्मेशन भी ऐसा होना चाहिए आपके पास जैसे उस शरीर को आपने ही बनाया हो, वैसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास उस शरीर के बारे में। अगर ऐसे इंफॉर्मेशन के ना होने के बाद भी कोई सर्जन किसी व्यक्ति का सर्जरी करता है तो उसको सर्जरी नहीं बोला जाएगा बल्कि उसको मर्डर बोला जाएगा। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी ने दिया था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इन अमेरिका, ये दोनों बातें सदाव को बहुत अच्छे से और अभी तक ये दोनों बातें अपने प्रोफेसर की कही हुई बातें अच्छी से उसको याद थी। इट वॉज नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड सदाव मरमर्ड। सदाव बोलता है कि जो बुलेट लगा हुआ था उस सोल्जर के शरीर में, वो बुलेट उसके किडनी के बहुत नजदीक तक पहुंच गया था और सदाव बड़बड़ा रहा है क्योंकि उसका पेशेंट तो बेहोश है। सदाव बड़बड़ा रहा है और बोल रहा है कि अगर ये गोली तुम्हारे किडनी के थोड़ा भी और नजदीक जाकर के लगता तो फिर तुम्हारा जान बचना नामुमकिन था। सदाव मरमर्ड। और फिर सदाव का एक हैबिट था कि जब वो अपने पेशेंट्स का ऑपरेशन कर रहा होता था तो पेशेंट्स तो बेहोश रहते थे, लेकिन सदाव ऑपरेशन करते वक्त उन बेहोश पेशेंट्स से बातें किया करता था। और स्पेशल फीचर ये था कि उन सभी पेशेंट्स को वो माय फ्रेंड करके संबोधित करता था।
चाहे कोई भी पेशेंट हो सर्जरी के दौरान। तो अपने इसी हैबिट के चलते डॉक्टर सदाव ने उस अमेरिकन सोल्जर के लिए भी माय फ्रेंड वर्ड यूज किया। बोला कि देखो दोस्त, अगर ये गोली तुम्हारे किडनी के जरा भी नजदीक जाती तो तुम्हारा जान जा सकता था। और माय फ्रेंड बोला उसको। इट वॉज हिज हैबिट, ये उसका हैबिट था सदाव का, कि जब वो अपने पेशेंट्स को का सर्जरी करता था तो वो इतना खो जाता था अपने पेशेंट्स के सर्जरी में तो कि वो बातें करने लगता था अपने बेहोश पेशेंट्स से, और जो भी बातें करता था उसमें वो अपने पेशेंट्स को माय फ्रेंड करके संबोधित करता था। और यही हैबिट के वजह से वो इस अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो उसका एनिमी है, उसके लिए भी उसके मुंह से माय फ्रेंड निकलता है आउट ऑफ हैबिट। फिर उसको रियलाइज होता है डॉक्टर सदाव को कि जिस व्यक्ति को हम माय फ्रेंड बोल रहे हैं एक्चुअली में वो व्यक्ति उसका दोस्त नहीं है बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। उसका और उसके कंट्री का, जापान का सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब अमेरिकन सोल्जर है। मगर आदत के अनुसार उसके मुंह से माय फ्रेंड शब्द उस अमेरिकन सोल्जर के लिए भी निकल जाता है। माय फ्रेंड वो हमेशा बोलता था अपने पेशेंट्स को। एंड नाउ ही डिड, ये अभी भी वो किया, ये फॉरगेट कर गया, भूल गया कि जो पेशेंट्स को, जिस पेशेंट को अभी ये माय फ्रेंड बोल रहा है वो पेशेंट इसका फ्रेंड नहीं है बल्कि वो इसका एनिमी है। देन क्विकली द क्लीनेस्ट एंड मोर प्रिसाइज इनसिजन द बुलेट वॉज आउट। उसके बाद डॉक्टर सदाव ने, जो एक एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बिना कोई डैमेज पहुंचाए बहुत एक्सपर्ट तरीके से उसके अंदर फंसे हुए बुलेट को बाहर निकाल दिया। जो बुलेट 2-3 दिन पहले से उस अमेरिकन सोल्जर के बैक साइड में, लोअर बैक साइड में लगा हुआ था, उस बुलेट को फाइनली डॉक्टर सदाव ने बाहर निकाल लिया। द मैन क्विवर्ड। बुलेट जब वो निकाला तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो जो आदमी जो बेहोश पड़ा हुआ था, जैसे ही बुलेट निकला वो आदमी कांपता है, उसका शरीर कांपने लगता है। और कांपने के लिए यहां वर्ड यूज किया है क्विवर्ड। जैसे ही वो बुलेट निकालता है तो उस बेहोश आदमी का, बेहोश अमेरिकन का शरीर जो है वो क्विवर करता है। ये वर्ड आपको याद रखना होगा कि क्विवर करता है, मतलब कि वो कांपता है। हालांकि वो बेहोश है लेकिन बेहोशी के हालत में भी वो कांप उठता है जब उसका बुलेट उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है। बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। कांपा जरूर लेकिन अभी तक होश नहीं आया उसको, वो अभी भी अनकॉन्शियस था, मतलब बेहोश था। बेहोशी में भी वो कांप रहा था। नेवरदलेस ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेहोशी के हालत में तो वो था ही, वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, लेकिन बेहोशी के हालत में भी उसके मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, बहुत धीमी आवाज में कुछ वो बोलता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या बोलता है। यहां देखो लिखा हुआ है गट्स। ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स। ये वर्ड जो है गट्स, ये बहुत इजी वर्ड है, डेली यूज का वर्ड है। हम लोग अगर किसी से बहस करते हैं तो हम लोग भी ये इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं और बोलते हैं
कि देखते हैं तुम्हारे में कितना गट्स है। तो गट्स का मतलब क्या होता है? हिम्मत। तो वो जो अमेरिकन प्रिजनर था वो बड़बड़ाता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि वो क्या बड़बड़ाता है। तो गट्स वर्ड याद रखिएगा। वो बड़बड़ाता है गट्स और फिर बोलता है दे गॉट माई गट्स। इसका मीनिंग क्या है कि वो एक तरह से जापानीज सोल्जर्स को चैलेंज कर रहा है। वो बोल रहा है कि जापानीज सोल्जर जितना उसको टॉर्चर कर सकते थे उतना उसको टॉर्चर किए, मगर ये अपने पैट्रियटिज्म से, ये अपने देशभक्ति से, ये अमेरिकन कोई समझौता नहीं किया। और वो बोलता है कि उन्होंने मेरे गट्स का पूरा एग्जामिनेशन लिया, मतलब कि आखिरी हद तक टॉर्चर किया, लेकिन ये भी बता दिया कि अमेरिकन सोल्जर कि इसके अंदर कितना गट्स भरा हुआ था, कि उनके इतने टॉर्चर सहने के बाद भी ये व्यक्ति जिंदा था और कैद से भाग भी गया था। तो वो बोलता है गट्स, दे गॉट माई गट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। किसने बोला है? अमेरिकन सोल्जर, प्रिजनर ऑफ वॉर में ने बोला है। और किसके लिए यूज किया है? कि किन्होंने उसके गट्स को गट्स की परीक्षा ली? जापानीज आर्मी ने उसके गट्स की परीक्षा ली, मगर वो उसका गट्स जो था, उसका हिम्मत जो था, वो नहीं तोड़ पाए। जापानीज आर्मी कोशिश करके भी उसका हिम्मत नहीं तोड़ पाए। ये शब्द वो बुदबुदाया, बेहोशी में बुदबुदाया वो अमेरिकन सोल्जर। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, हश, सदाओ सेड। उसको बोलते हुए देख करके हाना थोड़ा घबरा गई। वो सदाओ को बोलती है कि सदाओ देखो ये कुछ बोल रहा है। तो सदाओ उसको, हाना को चुप होने बोलता है। ये हश वर्ड जो होता है वो चुप होने के लिए होता है कि थोड़ा लो वॉइस में बोलो। द मैन sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. ये इतना बोलने के बाद, गट्स वाला बात बोलने के बाद, वो अमेरिकन सोल्जर जो है वो एक बार फिर से पूरी तरह से बेहोश हो गया। और वो इस तरह से बेहोश हुआ कि एक समय के लिए तो डॉक्टर सदाव को भी लगा कि कहीं ये मर तो नहीं गया। तो डॉक्टर सदाव कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं? डॉक्टर सदाव उसका कलाई पकड़ते हैं। रिस्ट वर्ड है। और कलाई पकड़ करके क्या देखा जाता है? कलाई पकड़ करके पल्स देखा जाता है, नब्स जिसको बोलते हैं, कि इसका नब्स चल रहा है कि नहीं। डॉक्टर सदाव को ये लगा कि कहीं ये आदमी का डेथ तो नहीं हो गया। तो डॉक्टर सदाव ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ी, उसका रिस्ट पकड़ा और फिर उसने उसमें फील करना शुरू किया कि इसका पल्स जो है रिस्ट का वो चल रहा है कि नहीं। लेकिन जब वो उसका रिस्ट पकड़ करके उसका पल्स चेक कर रहा था तो ये भी लिखा है हेटिंग द टच ऑफ इट। डॉक्टर सदाव को ये चीज जो है वो पसंद नहीं आ रहा था, बिकॉज ही वॉज दैट मैन, दैट अमेरिकन वॉज हिज एनिमी। वो तो उसका दुश्मन था और उसका इलाज करना पड़ रहा था डॉक्टर सदाव को। तो वो उसके टच को हेट कर रहा था, नफरत था उसको, लेकिन फिर भी डॉक्टर का जो कर्तव्य था उसको निभाने के चक्कर में डॉक्टर सदाव जो हैं वो उसका पल्स चेक करता है। जब वो पल्स चेक करता है तो क्या पाता है? यस, देयर वॉज स्टिल अ पल्स, सो फेंट, सो फीबल, बट एनफ इफ ही वांटेड टू द मैन टू लिव टू गिव होप। जब वो उसका नब्स टटोलता है तो यहां दो वर्ड यूज किया है कि उसका नब्स जो था वो उस सोल्जर का वो फेंट और फीबल था।
फेंट और फीबल का मतलब है वेरी वीक, मतलब कि अगर किसी इंसान का पल्स का रेट 1 मिनट में 80 बार होना चाहिए, तो समझो कि उस अमेरिकन सोल्जर का जो पल्स रेट था वो 80 के जगह 10-20 था। मतलब उसका पल्स जो था वो बहुत धीमा हो चुका था। फेंट और फीबल, ये दोनों वर्ड का मतलब है वेरी वीक, बहुत कमजोर पल्स चल रहा था उसका। मगर डॉक्टर सदाव कहता है कि अगर इतना कमजोर पल्स भी इसका चल रहा है, पल्स बंद नहीं हुआ है, तो इतना एनफ है, इतना काफी है इस आदमी को जिंदा रखने के लिए, ये डॉक्टर सदाव सोचता है। बट सर्टेनली आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, ही थॉट। सदाव फिर अपने मन में सोचता है कि लेकिन अपने अंतर मन से सदाव नहीं चाहता था कि यह आदमी जिंदा बचे। देखिए, सदाव हमेशा पूरे चैप्टर में सदाव के मन में एक डायलेमा है, जो मैं पहले बता चुका हूं, कंफ्यूजन है। एक तरफ तो उसका देशभक्ति है और दूसरे तरफ उसका डॉक्टर का कर्तव्य है। अगर वो देशभक्ति का कर्तव्य पूरा करता है तो उसके डॉक्टर का कर्तव्य जो है वो पूरा नहीं कर पाएगा, और अगर डॉक्टर का कर्तव्य पूरा करता है तो देशभक्ति का कर्तव्य जो है वो नहीं पूरा कर पाएगा। तो डायलेमा जो है वो हमेशा डॉक्टर सदाव के मन में है। उसका हाथ पल्स देखने के लिए उठाता तो जरूर है, लेकिन वो बोलता है आई हेट द टच ऑफ इट। उसे नफरत था उसका हाथ चेक करने में। फिर यहां भी बताता है कि वो जिंदा बच जाएगा, इतना पल्स चल रहा है। मगर फिर डॉक्टर सदाव बोलता है आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लिव, कि मैं नहीं चाहता दिल से कि यह आदमी जिंदा बचे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। उसने हाना को बोला कि अब इसको और एनेस्थेटिक देने का जरूरत, बेहोश करने वाली जो दवाई होती है एनेस्थेटिक, और एनेस्थेटिक देने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हाना ने फिर वो एनेस्थेटिक वाला जो कॉटन था वो वहाँ से उसके नाक के पास से, नॉस्ट्रिल के पास से हटा दिया। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicines he chose a small vial and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. जब डॉक्टर सदाव उसका पल्स चेक करता है और पाता है कि उसका पल्स बहुत कमजोर है लेकिन जिंदा बचने के लिए काफी है, तो डॉक्टर सदाव फिर तुरंत अपने मेडिसिन्स के तरफ मुड़ता है और उन मेडिसिन्स में से वो एक इंजेक्शन वाला सिरिंज चुनता है। देखो यहां वर्ड यूज किया है हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक, और यहां वर्ड यूज किया है वायल। ठीक है, तो वायल और हाइपोडर्मिक ये दोनों का मतलब होता है, जो हम सब देखते हैं कि एक दवा होता है, बॉटल का दवा होता है, और उस बॉटल से सुई इंजेक्शन लगा करके वो दवा बाहर खींची जाती है पहले सिरिंज में, और फिर उस दवा को बाह में या थाइज में इंजेक्ट किया जाता है। तो डॉक्टर सदाव यही कर रहा है कि वो जल्दी से मुड़ता है, अपना एक बॉटल निकालता है और उस सिरिंज में वो उस बॉटल के केमिकल को भरता है और उस पेशेंट के लेफ्ट आर्म में लगाता है। पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, ये याद रखना कि लेफ्ट आर्म में वो उसको इंजेक्शन लगाता है। देन पुटिंग डाउन द नीडल ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन। उसके बाद उसको इंजेक्शन लगाने के बाद सदाव जो है फिर से उसका कलाई पकड़ करके और उसका रिस्ट का पल्स चेक करता है।
इस बार वो क्या पाता है, द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड देन ग्रू स्ट्रॉन्गर। कि जैसे ही इंजेक्शन जो लग गया तो उसके बाद उस आदमी का जो पल्स था, जो धीरे चल रहा था, फीबल था, वीक था, वो पल्स जो है वो स्ट्रांग हो गया। मतलब जितना चलना चाहिए पल्स वो चलने लगा। ग्रू स्ट्रॉन्गर लिख रहा है। और ये कब हुआ, जब डॉक्टर सदाव ने उसको एक इंजेक्शन लगाया, तब उसका पल्स जो है वो स्ट्रॉन्गर हो गया। अब डॉक्टर सदाव का स्टेटमेंट है, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। डॉक्टर सदाव को बहुत राहत महसूस हुआ और उसने हाना से कहा कि अब ये व्यक्ति जो है अब जिंदा बच जाएगा, ये हम श्योर हो चुके हैं। और बहुत राहत महसूस कर रहा था। ये इसके लिए साइड वर्ड है, राहत वाले भरे आवाज में उसने हाना को बताया। द यंग मैन वोक सो वीक, हिज ब्लू आईज सो टेरिफाइड व्हेन ही प्रिव्यूड वेयर ही वॉज। उसके बाद उस अमेरिकन सोल्जर को थोड़ी देर बाद होश आया। जब होश आया, अमेरिकन सोल्जर ने आंखें खोली और जब उसने देखा अपने आसपास तो वो तुरंत समझ गया कि वो किसी जापानीज के घर में है। और इससे उसको जब ये पता चला कि जापानीज के घर में हम हैं, तो इससे उसका जो डर था वो और बढ़ गया, क्योंकि जापानीज तो दुश्मन समझते थे अमेरिकन्स को। तो जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि मैं किसी जापानीज के घर में हूं, तो उसका जो फ्राइट था, उसका जो डर था, वो उसकी आंखों में, उस अमेरिकन प्रिजनर की आंखों में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। और उसके यहां देखिए लिखा हुआ है ब्लू आईज, ये याद रखिएगा, ब्लू आईज। टेरिफाइड मतलब घबराहट, उसके आंखों में एक चिंता, एक घबराहट, एक डर दिखाई दे रहा था। वेयर ही वॉज, जब वो समझा कि हम कहां हैं, हम अभी भी जापान में ही हैं। देन हाना फेल्ट कंपेल्ड टू एपोलोजाइज। उसके आंखों में डर देख करके हाना को बहुत एम्बैरेसमेंट फील होता है, वो शर्मिंदगी महसूस करती है और हाना उससे माफी मांगती है। एपोलोजाइज वर्ड यूज किया है माफी मांगने के लिए। हाना उससे माफी मांगती है। इसका कहने का मतलब है कि हाना उसको ढाढ़स बंधाती है कि तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, यू आर इन अ सेफ प्लेस, तुम बिल्कुल सुरक्षित जगह में हो। हाना उसको ये संतावना देती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर इन अ सेफ प्लेस, तुमको कुछ नहीं होगा। शी हरसेल्फ सर्व्ड हर फॉर नन ऑफ द सर्वेंट्स वुड एंटर द रूम। अब उसका सर्जरी हो गया, उसके बाद फिर हाना जो है वो खुद से उस व्यक्ति की, उस अमेरिकन की खुद से सारा देखभाल किया करती थी। उसका नाश्ता, उसका खाना, उसके कपड़े, वो सारी चीजें हाना कर रही थी। क्यों कर रही थी? यहां लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी नौकर ने उस रूम में जाने से मना कर दिया था। नौकर ने उस रूम में जाने से, किसी भी नौकर, कोई भी नौकर उस रूम में जाने को तैयार नहीं था। तो उस अमेरिकन सोल्जर का जो जितना भी देखभाल था आफ्टर सर्जरी, वो हाना कर रही थी और बहुत अच्छे से वो उसको सर्व कर रही थी। इसके आगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।